ابابیل کی طاقت سے انہیں دبایا. میں نے ابابیل کی طاقت سے انہیں دبایا. نہیں, برملا کو مت دیکھنا, اصغر کو دیکھنا. 28 رجب کے بعد یزید لشکر بڑھاتا رہا, حسین لشکر گھٹاتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ یزید کو طاقت پہ بھروسہ تھا, حسین کو قدرت پہ بھروسہ تھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب ہاتھی بھیجے گئے تو اللہ نے ابابیل کے ذریعے ابابیل کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر بھیجے. جب وہ کنکر گرے تو ہاتھی مسمار ہو گئی, طاقت مسمار ہو گئی. ہم نے کہا پالنے والے یہ کیسے ہو گیا کہ ایک بھی کنکر کعبے پہ کیوں نہیں گرا, ایک بھی کنکر کعبے پہ کیوں نہیں گرا. عجب نہیں, آواز آئے گی, ہمارے بھیجے ہوئے دیکھ کے چلتے ہیں, ہمارے بھیجے ہوئے دیکھ کے چلتے ہیں. اب یہ تم سوچیں گے سرور پر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب اللہ کے بھیجے ہوئے کنکر خطا نہیں کر سکتے تو پیغمبر کیا خطا کریں گے؟ یہ کیا وجہ تھی کہ اللہ نے کہا بدلاؤ ضروری ہے. دیکھیے ہمارا یہاں فرشادہ پہ آنے کا رنگ اور ہو, یہاں سے جانے کا رنگ اور ہو. جب فرشتے کچھ فرشادہ سے اٹھ کے آسمان کی بلندی پہ گئے تو وہاں پہ جو فرشتے تھے ان لوگوں نے کہا بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ تو سارے فرشتوں نے کہا ہم بعد میں بتائیں گے ہم کہیں سے آ رہے ہیں, پہلے یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلا ہم کہیں سے آ رہے ہیں؟ تمہیں کیسے پتا چلا ہم کہیں سے آ رہے ہیں؟ تو جو آسمان پہ فرشتے تھے ان لوگوں نے کہا تمہارے بدن سے خوشبو آ رہی ہے, تمہارے بدن سے خوشبو آ رہی ہے, لہٰذا یہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چینج ہی کیوں ضروری ہے, تبدیلی ہی کیوں ضروری ہے؟ آپ انسان ہیں, شیطان تو نہیں ہے, آپ بشر ہیں, پتھر تو نہیں ہے. لہٰذا انسان کے اندر جب تک تبدیلی نہیں آئے گی, چینجنگ نہیں آئے گی, یقین جانیے ہم فرش اعلیٰ پہ ناز کرتے ہیں. ہم فرش اعلیٰ پہ آ گئے, 1 کلومیٹر سے چل کے آ گئے, 10 کلومیٹر سے چل کے آ گئے. یقین جانیے جو جنت چھوڑ کے آ رہا ہو, جو جنت چھوڑ کے آ جائے, اور یقین جانیے آپ سے پہلے اس فرش اعلیٰ پہ نبی آ کے بیٹھتے ہیں, فاطمہ آ کے بیٹھتی ہیں, حسن آ کے بیٹھتے ہیں, علی آ کے بیٹھ. کیا کرنے آتے ہیں؟ اہل بیت بننے آتے ہیں. نہیں, اہل بیت بننے نہیں بنانے آتے ہیں. اہل بیت بننے نہیں آتے ہیں بلکہ بنانے آتے ہیں. بھائی علی یہاں پہ علی بننے نہیں آتے ہیں, سلمان بنانے آتے ہیں. حیدر یہاں پہ حیدر بننے نہیں آتے ہیں, ابو ذر بنانے آتے ہیں. ہمیں نہیں بدل پا رہے تھے, لہٰذا ہمیں اپنے مکان میں قضا خانہ بنانا پڑا. ہمارے مکان ہمیں نہیں بدل پا رہے تھے, لہٰذا ہمیں اپنے گھر میں حسین کے لیے ایک مکان بنانا پڑا. اب پتہ چلا ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ امت کو امام سمجھتا ہے, مکانوں کو قضا خانے سمجھتا ہے. صلی علی محمد وآل. یقین جانیے اگر یہ مجلسیں نہ ہوں تو دنیا میں پتہ نہیں کتنی موتیں ہو جائیں, اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے یہاں کیسے لوگ رہتے ہیں, کتنے لوگ رہتے ہیں. یہ مجلسیں بتاتی ہیں. اور یقین جانیے اگر عزاداری نہ ہوتی تو ہمارے گھروں میں دولت ختم گھٹ کے رہ جاتا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. یقین جانیے دنیا نے ہمیں اتنا مالداری نے نہیں پہچانوایا ہے جتنا آزاداری نے پہچانوایا ہے. دنیا نے ہمیں اتنا مالداری نے نہیں پہچانوایا ہے جتنا آزاداری نے پہچانوایا. کیوں؟ اس لیے کہ آزاداری بانٹنا جانتی ہے, مالداری بٹورنا جانتی ہے. محمد ڈر سے مدینہ چھوڑ رہے ہیں. وہ دراصل یزید نے خط لکھ دیا تھا اور ولید سے یہ کہہ دیا تھا کہ حسین کا سر کاٹ لینا. ہم نے کہا مولا کیا آپ یزید کے ڈر سے جا رہے ہیں؟ کہا جو ڈر جائے وہ حسین نہیں, جو ڈر جائے وہ حسین نہیں. ہم نے کہا مولا تو پھر کیوں جا رہے ہیں؟ کہا خط اس نے لکھا تھا میں نے نہیں, چھیڑا اس نے تھا میں نے نہیں. کہا میں یزید کے ڈر سے مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہوں, میں اپنی مرضی سے مدینہ چھوڑ رہا ہوں. کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ آج کے بعد حسین شروع ہے, یزید ختم ہے. آج کے بعد حسین شروع ہے, یزید ختم ہے. ہم نے کہا مولا آپ مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کہا دراصل جو ولید میرے پاس خط لے کے آیا کہ یزید تم سے بیعت چاہتا ہے, یزید بیعت مانگتا ہے, فوراً میں نے کہا لا یبایع مثلی مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا.
मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। हमने कहा पालने वाले, हमने कहा मौला ये बताइए आगे हुआ क्या? कहा जब वलीद ने मुझे बुलाया तो मैं गया, लेकिन जब मैंने बुलाया तो वो नहीं आया। पता यजीद के डर से मदीना नहीं छोड़ रहा हूँ। अरे जब यजीद का बाप मेरे भाई हसन से 10 साल तक मदीना न छुड़वा सका, जब यजीद का बाप मेरे भाई हसन से 10 साल तक मदीना न छुड़वा सका तो मुझसे क्या छुड़वाएगा? हमने कहा मौला दुनिया यही कहेगी कि आपने यजीद के डर से मदीना छोड़ा है, आप क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? फिर मौला ने फरमाया कि खत उसने लिखा था मैंने नहीं, छेड़ा उसने था मैंने नहीं। भला 6 महीने के लिए मैं घर से बाहर क्यों रहूँगा? एक दिन की करबला के लिए मैं 6 महीना क्यों लगाऊंगा? यही वजह है। मौला ने ये कहा और कहा, कहने के बाद कहते हैं कि ऐ यजीद मैं 6 महीने घर से बाहर रहूंगा, जिस मोड़ पे चाहे आके मिल ले, जिस मोड़ पे चाहे आके मिल ले, लेकिन मुझे पता है तू सीरिया नहीं छोड़ेगा, लेकिन मुझे पता है तू सीरिया नहीं छोड़ेगा। और मेरा बाप किसी मैदान से नहीं भागा। फिर जुमला कहते हैं मौला ने फरमाया मुझे पता है वो क्या मैदान में आएगा कि जिसका बाप कभी मैदान ही में ना आया हो। वो क्या मैदान में आएगा कि जिसका बाप कभी मैदान ही में ना आया हो। मौला ने ये कहा और फिर कहते हैं कि ठीक है मैं यजीद के डर से मदीना नहीं छोड़ रहा हूँ। एक दिन की करबला के लिए भला मैं 6 महीने क्यों लगाऊंगा, मैं 6 महीने घर से बाहर क्यों रहूंगा? मैं तुम्हें मोहलत दे रहा हूँ, जिस मोड़ पे चाहे आके मिल ले। मौला ने कहा 28 रजब के बाद मैं तारीख लिखता हूँ, मैं तारीख लिखता हूँ। आज के बाद मेरी तारीख चलेगी। हुसैन शुरू है, यजीद खत्म है। मौला ने जुमला कहा कि 28 रजब के बाद यजीद सुन लेना कि आज के बाद अगर तेरे दरबार में ईंटें लगी तो तू जीता और मेरे अदा खाने बने तो मैं जीता। हम मर के परेशान नहीं हैं। और यकीन जानिए मजलिसों में मार दिया जाता है, कहीं जुलूस लेके चलो मार दिया जाता है, आलम लेके चलो मार दिया जाता है। लकी भाई आपके लिए जुमला नजर कर रहा हूँ, आलम लेके चलो मार दिया जाता है, लेकिन हम पलट के जवाब नहीं देते। क्यों? हम आलम उठा के बताते हैं, हम आलम लेके चल के बताते हैं। हम गद्दार की कौम नहीं है, वफादार की कौम है। हम गद्दार की कौम नहीं है, वफादार की कौम है। अब यकीन जानिए हमने कहा मौला यहाँ मार रहे हैं, वहाँ मार रहे हैं, परेशान हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तब से पता चला कहाँ कहाँ है। हमने कहा मौला ऐसा तो खत्म हो जाएंगे, परेशान हो रहे हैं। कहा ये बताओ साल भर की फहरिस्त क्या है? हमने कहा मौला 10,000 यहाँ मार दिए गए, 15,000 वहाँ मार दिए गए, 25,000 वहाँ मार दिए गए, 5,000 वहाँ मार दिए गए। और टोटल फहरिस्त कितनी हुई? हमने कहा मौला 35,000। ओहो साल भर में उन लोगों ने 35,000 मारे हैं। कहा सब्र करो, होश में आओ, सिर्फ चेहरों तो आने दो, करोड़ों में बुलाऊंगा, तब उन्हें पता चलेगा हमने मारे कितने हैं, मैंने बुलाए कितने हैं। चेहरों तो आने दो, तब उन्हें पता चलेगा हमने मारे कितने हैं और मैंने बुलाए कितने। यकीन जानिए 28 रजब जब मौला घर से निकल रहे थे तो हर घर में जाकर तकबीर बात कर रहे थे। तो मैं क्या तुम लोग मेरे साथ चल रहे थे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जी मतलब मौला ने अपने आबा को अपने हाथों में उठाया और कहते हैं अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं अकेले जा रहा हूँ तो मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ। मेरा पूरा घर है, मेरी फुफियाँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बच्चियाँ हैं, मेरे साथ मेरे बेटे हैं, मेरे भाई हैं, अकेले नहीं जा रहा हूँ। मौला ने इस वजह से कहा ताकि क़यामत के रोज़ कोई ये ना कह सके कि हमें इत्तला नहीं हुई थी, हमें मालूम नहीं हुआ था। हाँ अज़ीज़ाने मोहतरम, जब मौला नाना की कब्र पे पहुँचे तो मतलब लिपट के रोने लगे, नाना मैं आपके दीन को बचाने के लिए जा रहा हूँ, आपके दीन को बचाने के लिए जा रहा हूँ। तो एक मतलब कब्र से आवाज़ आई, अरे बेटा हमने इस मदीने को बनाने में बहुत मेहनत की है,
मेरी मेहनत लगी है। अरे बेटा तुम मदीना छोड़ रहे हो, तुम्हारे पास क्या कीमती चीज़ है, तुम क्या लेके जा रहे हो, कैसे मेरा दीन बचाओगे? तो मौला कहते हैं नाना मेरे पास अकबर का कलेजा है, मेरी बहन की चादर है, मेरी बच्ची के गोशवारे हैं, मेरा गला है, मेरे अब्बास के दोनों बाजू। हमने जब सवाल किया ये बताइए क्या आपने पूरी करबला सुन ली, आपने पूरी करबला सुन ली, तो आप यही कहेंगे अगर हम रोते रोते मर भी जाएं तब भी हम पूरी करबला नहीं सुन सकते। एक मतलब हमने हामिद से सवाल किया, अरे हामिद इब्न मुस्लिम ये बताओ क्या तुमने पूरी करबला तहरीर कर दी, पूरी करबला लिख दी? कहा नहीं मैं पूरी करबला नहीं लिख पाया, करबला में इतनी तेज मसाइब चल रहे थे जितनी तेज मेरा कलम नहीं चल पा रहा था। हमने ये तो लिख दिया कि सैयद सज्जाद कितने तमाचे लगे, हमने ये तो लिख दिया कि हुसैन कितनी मर्तबा गिरे, लेकिन ये ना लिख पाए कि ज़ैनब को कितने ताज़िया दे। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद, अल्लाह मेहमान नाज़िल फरमाए। हाँ जिनाने मोहतरम अब मौला जाने के बाद हो चलिए जब एक साहब का शहीद अब जब मौला गए सैयद सज्जाद के पास आते अरे बेटा मैं तुम्हें अपनी इमामत सौंपने के लिए आया हूँ, अपनी इमामत सौंपने के लिए आया हूँ। हाजिराने मोहतरम जब रुखसत होने लगे तो एक मरतबा जनाब ज़ैनब कहती हैं अरे भैया ज़रा यहाँ आइए। आखिरी वक्त में अम्मा ने वसीयत की थी जब वक्त रुखसत हुसैन आए तो गले पे पोसा ले लेना, गले पे पोसा ले लेना। जब गले पे पोसा लिया तो मौला ने कहा बहन गले पे पोसा लेने का क्या मतलब है? तो एक मतलब में शिब्र का खून निकल चलेगा। हाजिराने मोहतरम हमें हुसैन पलटने लगे, दोबारा आए बहन ज़ैनब लाओ अपनी कलाइयों का बोसा लेने दो। बाबा ने कहा था जब वक्त रुखसत जाना तो ज़ैनब की कलाइयों पे बोसा ले लेना। अब जब बोसा लिया तो ज़ैनब कहती भैया बोसा लेने का क्या मतलब है? तो अजब ने मौला कहेंगे अरे बहन ज़ैनब अरे मेरी शहादत के बाद ये वही कलाई होगी जिनमें रस्मबाजी जाएगी, तैयार को तैयार फिराया जाएगा। और इमाम हुसैन घोड़े को सवार हो गए। अब तो जुलना को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जुलना आगे नहीं बढ़ रहा है, जुलना आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो एक मरतबा इमाम हुसैन कहते हैं ऐ जुलना आखिरी वक्त में क्या तुमने मेरा साथ छोड़ दिया? तो जुलना ने जो पाँव की जानिब इशारा किया तो क्या देखा 4 साल की बच्ची सकीना ले जा, मेरे बाबा को ना ले जा। मौला जुलना से नीचे आए बेटी सकीना मैं तुम्हारे लिए पानी लाने जा रहा हूँ। सकीना कहती है बाबा मुझे प्यास नहीं लगी है, जो भी पानी लाने जाता है जिंदा वापस नहीं आता। भैया अकबर गए जिंदा लौट के ना आए, चचा अब्बास गए जिंदा लौट के ना आए। अरे बाबा अब मुझे प्यास नहीं लगी है, मुझे प्यास नहीं लगी है। बाबा बस एक चीज पूछती हूँ ये बताइए जो बेटों के हक में होता है बेटों को मिल जाता है, जो बेटी के हक में होता है बेटी को मिलता है। बाबा मेरे हिस्से में क्या आया है? तो एक मरतबा इमाम हुसैन ने करबला की खाक उठाई सकीना के सर पे डाली। ऐ सकीना अरे तुम्हारे हिस्से में शिब्र के तमाचे, शिब्र के ताज़िया ने, तुम्हारे हिस्से में यतीमियां। अब बशीर आखिरी फिक्र है जब हुक्म मिला भाई का अजीजों सैयद सज्जाद आ रही अम्मा हमें इजाज़त मिल गई, अब हम मदीने को चलते हैं। तो जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा तुम्हारी माँ बाप कहीं नजर नहीं आ रही है, तुम्हारी माँ बाप कहीं नजर नहीं आ रही है। सैयद सज्जाद कहते हैं ऐ फुफी अम्मा मुझे मालूम है मेरी अम्मा कहाँ गई होगी, चलिए रास्ते से ले लेंगे। अब तो जिंदान शाम की जानिब बढ़े, जब पहुँचे सैयद सज्जाद आगे बढ़े, कब्र सकीना की जानिब देखा तो क्या देखा? रबाब कब्र से लिपटी हुई है जैसे कोई अपनी बच्ची के साथ लिपटा हो, और रबाब कह रही है ऐ बेटी सकीना अरे तुझे बड़ा अरमान था वतन जाने का, ऐ बेटी हम वतन जा रहे हैं चलो हमारे साथ चलो। सैयद सज्जाद ने कहा ऐ बशीर जाओ मदीने में ऐलान कर दो कि हमारा काफिला आ रहा है, हुसैन का काफिला आ रहा है। अब बशीर गया ऐलान किया, ऐलान करने के बाद मोहम्मद हनफिया जो कि मौला अली के बेटे थे जब इन्होंने सुना कि काफिला आ रहा है लेकिन ये नहीं सुन पाए
کہ مولا حسین شہید ہو گئے ہیں۔ اب جب یہ آئے تو آنے کے بعد قافلے کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ اپنی جانب دیکھتے ہیں، قافلے کو دیکھتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، بھیا حسین، بھیا حسین، کوئی آواز نہیں آ رہی ہوتی ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں میرے بھیا کہاں ہے، میرے بھیا نظر نہیں آ رہے۔ تو سید سجاد کہتے ہیں اے چچا جان، انہیں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، انہیں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اے چچا، ارے